Hello students, welcome back to your channel EdTech Guruji. I, Aman Bhatia, welcome you all to the session. The topic what we are doing is kinetic theory of gases, which is from the 12th standard of Maharashtra State Board. So students, today we are at lecture number 3. The first two lectures, if you have not seen, then the links are given in the description column. Also, I have linked the two videos in this video. Okay, so please go ahead and watch them first before we watch this particular video. And if this is the first time you are on my channel watching the video, go ahead and subscribe to the channel. Also like the video if you like the content. Students, before we begin with the topic, let me request you all to forward this video, share this video with all the students, all your friends who can be benefited with this content. So let us begin with today's session. Well, as I said, we are going to talk about kinetic theory of gases. So primarily we are dealing with the basic assumptions of kinetic theory of gases. Along with that, we are going to talk about the velocity of gas molecules, and then we will come back on the mean free path. Okay, what is mean free path? We will discuss at length. You'll also see a small derivation regarding how can we calculate the mean free path very easily. So let us begin with the class. Well, some basic assumptions of kinetic theory of gases. The first assumption says small volume of gas contains large number of molecules, approximately 10 raised to 23 number of molecules per meter cube. Now, what does that really mean to us? It means that even a very small volume of gas, okay, will have many number of molecules. It will be 10 to the order of 23 particles per meter cube. Molecules are extremely small in size, spherical in shape. They are perfectly elastic and rigid bodies. This is a property of a molecule. We are assuming that these molecules are very tiny, so extremely small in size. They are spherical in shape, so they are spherical bodies. Then they are perfectly elastic, rigid bodies. So what does that really mean is that whenever they will collide, okay, whenever the molecules will collide, the nature of the collision will be perfectly elastic. Okay, ये बार बार यहाँ पे समझ में आना जरूरी है. आगे जाके कहीं पर भी collision of molecules की हम बात कर रहे हैं, so they will be considered as perfectly elastic collisions. What does it mean is that the delta momentum or the change in momentum will not be there. Momentum will be conserved at 100%. Okay. So here are the gas molecules in a container. They are spherical rigid bodies and they collide and they all are in the random direction. So that means actual volume of the gas is negligible as compared to the volume occupied by the gas. अब ये जो है currently ये volume occupied हो गया. Volume of the gas is always equal to the volume of container. But if I start compressing it, it may come into this much space. Okay, that means the actual volume. That means when I start compressing a particular sample, okay, I can keep on compressing beyond a point when it is not going to be compressed, that is a actual volume of the gas. Okay, let us say the game of carom board. When we begin with the carom board, all the coins, the white and the black coins and the queen, they are all at the center. Okay, now that's a 2D plane, the XY plane, so they are at the center. They are not one above the other, otherwise it will become a 3D plane. Okay, so they are on the 2D plane. Okay, so that is the closest possibility between them. But when we hit it with the striker, all the coins get scattered on the entire board. That is the occupied area, right? So actually they were at very lesser, that is the center, but now they have occupied the entire board. Same thing applies in 3D. So we are talking about volume in case of gas molecules. Actually may they come in this much, but when they are released, they can go ahead and spread across the entire room. Alright, so this is the difference between the actual volume and the volume occupied. I hope this is very clear to us. Molecules of the gas are in state of continuous random motion. ये कहाँ से लिया है? Brownian motion से. They are in the state of continuous random motion. और इसी को हमने 11th में chemistry में पढ़ा हुआ है. What is this? This is called as Brownian motion. Okay. Due to random motion, they collide with themselves as well as with the walls of the container. So, because they are in the random motion, they collide with themselves and also with the walls of container. Okay, they collide with themselves and also with the walls of
container. There is no force of attraction between the molecules themselves or of the molecules with the walls of container. The intermolecular force of attraction between the molecules is negligible. तो यहाँ पर हम उसको assume करके चलते हैं कि there is no force of attraction between the molecules themselves or of the molecules with the walls of container. Okay, let us look some more basic assumptions of KTOG. Distance traveled by the molecule between any two successive collision is always a straight line and is called as free path. Not all free paths are the same, hence we calculate the mean free path. Very very important point guys, very important. और आज का main point है ये ना, आज का main point है distance traveled by the molecule between any two successive collisions is always a straight line. And this straight line path is called as a free path. Okay, now not necessarily always they will be the same. So what we calculate is the mean free path. What does the mean free path means? It means the average of all. Okay, it means the average of all. Okay, so here is a static picture of all the molecules. Okay, it's a static state of molecules when the picture is being clicked. And this is a molecule which is colliding and is following a random path. Okay, so this molecule here, this molecule is also called as a reference molecule. Okay, it is called as a reference molecule क्योंकि हम उसको अगर ट्रेस करके स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेफरेंस मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, अब फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है? तो फ्री पाथ का फॉर्मूला है स्मॉल s अपॉन n, वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. Okay, total distance traveled by the molecule in n number of collisions divided by n, which is the number of collisions. Is this clear students to all of you? Total distance, इसको भी हम देखेंगे कैसे इसको हम समझ पाते हैं. ठीक है, let us say यहाँ से एक ये मॉलिक्यूल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ रहेगा उसका, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से कहीं यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से इधर आ गया, इधर से फिर इधर चला गया. इस तरह से ये एक रैंडम मोशन चल रहा है. ठीक है ना, और इसमें टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो ऐड करके डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ कोलिजन के साथ, तो वो हो जाता है हमारा मीन फ्री पाथ. इसी मीन फ्री पाथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, लेट अस से पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में वो लैम्डा 1 डिस्टेंस चला, दूसरे और तीसरे के बीच में लैम्डा 2 चला, इसी तरह उसके बाद लैम्डा 3, करते 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 nth कोलिजन्स तक लैम्डा n चला. ठीक है, इसी को डिवाइड कर देंगे हम कैपिटल N के साथ. तो ये भी हमारा फॉर्मूला है और इसी में इन सब का जो समेशन है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस s. इज दैट क्लियर गाइज? ओके, तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक बेसिक फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का स्टूडेंट्स. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 8, after every collision velocity of the molecule changes. Definitely हम बोल सकते हैं कि after every collision the velocity of the molecule will change. Now velocity can be changed by two ways, either by changing its magnitude or by changing its direction, or third way is changing both magnitude as well as direction. Now when we say magnitude, we need to really specify a number and we are not calculating here. So you can say so that how can we so convinced with this assumption that after every collision the velocity of the molecule will change. So may not be the magnitude, may not be by the magnitude, but definitely with respect to the direction. It is following a random path, and after every collision its direction changes and hence its velocity will also change. Is that clear guys? So it is very very true. We will assume that after every collision velocity of the molecule will change. Diameter of the molecule is negligible as compared to any free path. Diameter. So molecules are very very tiny. Even if they move a little bit, this free path is much bigger than the diameter of the molecule. That is what this point number 9 says, that these molecules are so small that if you take randomly the smallest free path also in the entire study, that smallest free path also will be much bigger than the diameter of the molecule. I hope point number 9 is also very clear to all of you. Okay, now point number 10, time of impact of collision is negligible as compared to the time of travel between any two successive collisions. Very important, again very important point here. This is a very very important point, again a very important point.
टाइम ऑफ इम्पैक्ट मतलब ये मॉलिक्यूल चला, ये इस तरह से आया, ये इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, ये हुआ उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ये हुआ उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अब ये इम्पैक्ट होने के बाद ये यहां से यहां पे ऐसे चला, तो ये हो गया उसका टाइम ऑफ ट्रैवल। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है, हम नहीं उसको कैलकुलेट करेंगे कंपेयर टू दी टाइम ऑफ ट्रैवल। ये जो टाइम ऑफ ट्रैवल है इसे बोला जाता है एवरेज टाइम ऑफ ट्रैवल, एवरेज टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ के साथ। ये लार्जली डिपेंड करता है ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे लिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना, इसको हम देखेंगे तो Z से इसको डिनोट किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, आगे चल के देखेंगे दोनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा और समझेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, molecules of the same gas are identical and that of the different gases are different, but obviously अगर मैं 2 या 3 या 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को देख रहा हूँ तो ये सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल दिखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं। लेकिन अगर मैं एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को देख रहा हूँ तो फिर ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग गैसेस के हैं। 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th वापस से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट assumption, ठीक है, we will also prove it later, और जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, only on the absolute temperature. So if E is the average kinetic energy per molecule and T is absolute temperature, that is the Kelvin scale temperature, then E1 upon E2 will be equal to T1 upon T2. Very very important formula also. We will prove it little later. Till we don't prove it, we can use it as it is wherever we want to, because this comes under the assumption of kinetic theory of gases. I hope this is all the basic assumptions, okay, which are very very clear to all of us. Okay students, तो देखते हैं next क्या है। So next we have the velocity of gas molecules. Now velocity of a gas molecule is always represented as c bar. Okay, it's a conventional way of representing the velocity of gas. ऐसा नहीं है कि वो negative symbol है या फिर वो बार का मतलब है vector representation, ऐसा कुछ नहीं है। c bar is a normal symbol, conventional symbol of representing the velocity of molecules, so that we don't get mixed up with the speed of light and things like that. I mean, don't go in that direction right now. Okay, तो c bar is a normal representation. जैसे velocity होता है तो velocity को हम v से लिखते हैं, तो वैसे ही gas molecule के velocity को हम c bar से लिखते हैं, ठीक है। Okay, तो let us see velocity of n number of gas molecules in a given system is represented as c1 bar, c2 bar, c3 bar, so on till cn bar for first, second, third and the nth molecule respectively. So I hope this is very very clear to us. ओके, तो सी बार जो हम यूज करते हैं इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, बार हटाना नहीं है, ये कन्वेंशनल मेथड है रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ओके, अब गैस मॉलिक्यूल जो है ना, ये जो C1 है, C2 है, C3 है, स्टूडेंट्स ये ना देखो हर कोलिजन के बाद चेंज हो रहा है। हमने यही तो बोला ना बेसिक असम्पशन में कि आफ्टर एवरी कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। ओके, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड आल्सो। नाउ these collisions are happening in such a high number that by the time we say molecule, so many collisions are already happened in that time period. So we cannot really calculate C1 particularly or C2 bar particularly. So what we do is we define the gas molecule's velocity in a particular methodology. Okay, so we have something called as a mean velocity, which is given as C bar. ओके, C1 बार मतलब पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, C2 बार मतलब दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, लेकिन इनका जो मीन हम लेते हैं, एवरेज लेते हैं, उसको हम C बार से डिनोट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन, मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज मीन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मीन वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन। नाउ दिस C bar in some books is also represented as C average, CAV. In some books, especially in chemistry, okay, I will also use it. We may call it as V average, okay, V average, okay. तो AV भी लिखा रहता है, AVG भी लिखा रहता है, doesn't matter. तो C bar, CAV, VAV ये सारे उसके तरीके हैं मीन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए।
ओके, नाउ इसका फॉर्मूला क्या होगा गाइस? तो ये है क्या बच्चों? ये है मीन। मीन का मतलब ये क्या है? ये है एवरेज। ओके, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? nth मॉलिक्यूल्स का मीन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो c बार इज इक्वल टू c1 बार प्लस c2 बार प्लस c3 बार सो ऑन टिल cn बार डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो n है, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ओके, मीन पाथ में हमने मीन फ्री पाथ में n को बोला है नंबर ऑफ कोलिजन्स, वो भी देखेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। बट यहाँ पर इस n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है c बार स्क्वायर से। डेफिनेशन क्या है उसका देखते हैं। मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला क्या बनेगा? c बार स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर सो ऑन टिल cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगेन यहाँ पर n क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n इज नंबर ऑफ molecules. I hope this is clear to all of us. If these two are clear, let us move to the next velocity of gas molecules. The third one, it is called as root mean square velocity. Root mean square velocity. Okay, it is also given as CRMS. Okay, it is also given as CRMS. Okay, what is this? Root of the mean square velocity. Root of the mean square velocity of the gas molecules is called as root mean square velocity of the gas molecules. It is also called as RMS velocity for short. Okay, it is also called as RMS velocity and it is represented as CRMS, students. Okay, now what will be the formula for this? Now the basic formula would be something like CRMS. By definition, CRMS is equal to root of c बार स्क्वायर, isn't it guys? अब इसको देख के देखो क्या लगता है। अगर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर होता है, अगर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर होता है तो हम रूट के बाहर 2 लिखते हैं। अगर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर होता है तो हम रूट के बाहर 4 का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये रूट ऑफ c बार स्क्वायर है। यही तो डेफिनेशन है, रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर देन दिस इज अगेन इक्वल टू द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज c बार स्क्वायर का रूट है, मतलब ये c बार हो गया। बट स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ऐसा नहीं है, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा अगर हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों c बार स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? इट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट मींस मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, इट इज नॉट द स्क्वायर ऑफ द सम्स। ओके, इट इज मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। दैट मींस अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें तो CRMS इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर टिल cn स्क्वायर अपॉन n अंडर द रूट। ओके, और यहां पर ये होल स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसको c बार लिखना गलत हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है CRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल cn स्क्वायर अपॉन n एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू c बार। ओके, आगे जाके हम प्रूव भी कर देंगे, इसको थोड़ा सा देख भी लेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट दिस इज नॉट इक्वल टू c बार। आई होप this is also clear to all of us. So now if all basic assumptions are clear to us, if the velocity of gas molecules is clear to us, now we can come back to our main content for this particular session, and that is mean free path. Yes students, mean free path. Mean free path अच्छे से समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये रहा मेरा रेफरेंस मॉलिक्यूल। ओके, ये है मेरा रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब यहां पर मान लो इसका कोलिजन हुआ, जब से मैंने इसको ट्रेस करना स्टार्ट किया। ओके, तो यहां से मेरा कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में गया, यहां पर उसका फिर से कोलिजन हुआ किसी और मॉलिक्यूल के साथ, फिर ये इस डायरेक्शन में गया, यहां पर इसका फिर से कोलिजन हुआ, अब ये इस डायरेक्शन में गया। ये एक रैंडम पाथ फॉलो कर रहा है। फिर से कोलिजन हुआ, ये यहां आया, फिर से कोलिजन हुआ, ये यहां पहुंचा, और फिर से कोलिजन हुआ, अब ये यहां गया, फिर हमने इसको छोड़ दिया। मतलब हमने एक इंस्टेंस के लिए इसको फॉलो किया, रेफरेंस मॉलिक्यूल को फॉलो किया। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, इसका पहला कोलिजन हुआ,
यहाँ पर इसका पहला कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पर इसका दूसरा कोलिजन हुआ, यहाँ पर इसका तीसरा कोलिजन हुआ, यहाँ पर इसका चौथा कोलिजन हुआ, यहाँ पर इसका पांचवा कोलिजन हुआ, यहाँ पे इसका छठवां कोलिजन हुआ और यहाँ पर इसका सातवां कोलिजन हुआ। स्टूडेंट्स 7 times we are seeing the collisions here. Now how to calculate, what to consider and what not to consider, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, जिस भी कोलिजन के बाद उसका फ्री पाथ हम ट्रेस कर रहे हैं वही कोलिजन हम कंसिडर करेंगे। तो मतलब ये पहला कोलिजन है, उसके बाद के फ्री पाथ को हम लिख देते हैं लैम्डा 1। ये दूसरा कोलिजन है, उसके बाद के फ्री पाथ को हम लिख देते हैं लैम्डा 2। ये तीसरा कोलिजन है, इसके बाद के फ्री पाथ को हम लिख देते हैं लैम्डा 3। ये चौथा कोलिजन है, इसके फ्री पाथ को हम लिख देते हैं लैम्डा 4। ये पांचवा कोलिजन है, इसके बाद के फ्री पाथ को हम लिख देते हैं लैम्डा 5। ये 6 कोलिजन है, इसके बाद के फ्री पाथ को हम लिख देते हैं लैम्डा 6। अब 7th के बाद हमने इसको छोड़ दिया। इसका मतलब याद है वो जो फॉर्मूला हमने बोला था लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, तो उस केस में जब हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो हम उसी फ्री पाथ और उसी कोलिजन्स को देखेंगे जो हमने यहाँ पे रेफरेंस में लिए। तो जिस भी कोलिजन के बाद का फ्री पाथ हम कंसिडर कर रहे हैं उतने ही कोलिजन्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 प्लस लैम्डा 6 अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6। ओके, इस वाले कोलिजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद का फ्री पाथ हम नहीं ले रहे हैं। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला क्लियर? अब ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना, ये कैलकुलेट कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है ना। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स तो दिख नहीं रहे, तो एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन, मतलब ये तो नहीं कि स्केल लेके बैठे और कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो स्टडी के लिए मैंने बता दिया, रैंडम मोशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक और रियलिस्टिक फॉर्मूला दिया गया है जो हमारे पेज 57 पर दिया हुआ है हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, ठीक है, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n बाय v, है ना। अब इसमें देखो तो कुछ क्वांटिटीज हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रियलिस्टिक वे में, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे। हालांकि बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, बट इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अगेन इट इज नॉट गिवन इन द बोर्ड टेक्स्ट बुक, बट फॉर एंट्रेंस दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल दैट वी अंडरस्टैंड दैट द फ्लो ऑफ दिस डेरिवेशन, इट विल गिव अस सम मोर क्लैरिटी। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया। तो मान लो एक बहुत बड़े कंटेनर का एक पर्टिकुलर पार्ट हमने कंसिडर किया है, बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उसमें से हमने एक सेक्शन जो एक सिलेंड्रिकल सेक्शन कट किया है, ठीक है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है स्मॉल डी। ये स्मॉल डी जो है वो एक्चुअली है उस पर्टिकुलर गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल का डायामीटर, ओके, और ये हो जाएगा उसका लेंथ। अब यहाँ पर मान लो एक रेफरेंस मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर है, तो इसका डायमीटर कितना है बच्चों? d है। तो इसका मतलब ये जो सिलेंडर का जो ओपनिंग है, इसका ओपनिंग कितना है? 2d है ना। इसका डायमीटर, एक्चुअल डायमीटर कितना है? 2d है। मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है? d है। तो सिलेंडर का रेडियस कितना है? d है। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? ओके, अब मान लो यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल अंदर बैठा है स्टूडेंट्स, जब वो मान लो इस तरफ आ रहा है ना, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है एवरेज वेलोसिटी v av से, और इसको इस एंड से इस एंड तक आने के लिए डेल्टा टी टाइम लगता है, ठीक है, डेल्टा टी टाइम लगता है। अब जब ये यहाँ आएगा स्टूडेंट, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये इससे टकराएगा? नहीं, क्योंकि इसके बीच में गैप ज्यादा है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेगा, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये d/2 है। इसका मतलब यहाँ पर ये देखेंगे ये वाला पार्ट, है ना, तो ये वाला पार्ट भी d/2 ही है। d/2 पार्ट कितना हो जाएगा? स्मॉल d। तो इसका मतलब तब हम बोल सकते हैं कि ये कोलाइड करेंगे, है ना। तो इसका मतलब कोलिजन्स तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल d होगा, है ना, क्योंकि टच हो गए। टच करने को तो हम बोलेंगे ना कोलाइड हुए। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? तो ये टच होंगे कब? जब इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल d। ओके, अब ये यहाँ पर आ रहा है
VAV डिस्टेंस, VAV स्पीड से, और डेल्टा टी टाइम लगता है इसको इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट तक आने के लिए। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन फॉर द मॉलिक्यूल ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि तो जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ आया, इसको देखो टच किया ना, ठीक है। तो अब ये हम बोलते हैं कोलिजन हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। चलो अब हम कुछ यहाँ पे क्वांटिटीज को देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। पहली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, लेट d be the diameter of the molecule, VAV be the average velocity of the molecule, n be the number of molecules per unit volume, है ना, per unit volume मतलब n by v. Okay, let small n be the number of molecules in a unit volume. Is this a unit volume? No, this is not a unit volume. This is a volume of a cylinder which we have assumed of diameter 2d, of radius d, and of length l, which is equal to the average velocity multiplied by time. Right? यही तो distance is equal to velocity into time का formula आपने को पता ही है. Okay. Therefore, we understand the following things. The area of the cylinder is pi d square. Pi r square होता है, यहाँ पे रेडियस कितना है, d है, तो pi d square. Volume of the cylinder होता है pi r square h या pi r square l हो जाएगा. L का वैल्यू v average into delta t है, और pi r square की जगह हो जाएगा pi d square. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा pi d square into average velocity into delta t. I hope this is also clear to you. अब number of molecules in a unit volume is given as n by v, or it is represented as small n for us here. Okay, that means अगर unit volume में n molecules हैं, तो इतने volume में कितने molecules होंगे। तो सिंपल सी बात है, इस volume को n से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक पेन 10 रुपए का, तो 10 पेन कितने के, तो 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय द नंबर। अगर एक पेन 10 रुपए का, तो आधा पेन कितने का, तुम लोग आधे से मल्टीप्लाई कर दो। फिजिक्स में तो हम आधे से करेंगे, बट रियल वैल्यू उसका हो जाएगा 0, क्योंकि टूट गया ना। टूटे हुए पेन के लिए कोई क्यों पैसे देगा भाई। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमने ये बोला कि अगर वो आधा पेन है तो कितना होगा, तो हम बोलोगे सर आधा मल्टीप्लाई बाय द ₹10, राइट। तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में कितने होंगे, तो तुम सिंपली इसमें n को मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू n pi d square v average into delta t. आई होप ये सारी चीजें हमें एकदम क्लियर हो गई हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमें एकदम क्लियर है। अब यहां पर हमें एक बात समझनी है। We know that according to the basic assumptions of kinetic theory of gases, the molecules are spherical, perfectly elastic rigid bodies. Okay, and also we know that these molecules of the same gas are identical. Okay, here in addition to these two assumptions, we also assume, in addition, to make our study little easy, okay, a bit little complex. ठीक है, हम easy करने के लिए हम ये assume कर रहे हैं that all the molecules एक्सेप्ट आवर रेफरेंस मॉलिक्यूल, मतलब ये जो स्टार अपना हीरो है, ये है वो, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे है, ओके, ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब रेस्ट पे हैं। ओनली ये वाला जो मॉलिक्यूल है, रेफरेंस मॉलिक्यूल, वो मोशन में है। आगे जाके हम इस असम्पशन को हटा देंगे, बट फिलहाल अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, समझने के लिए, हमने ये यहां पर असम्पशन डाल रखा है। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द कोलिजन विल अकर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी स्मॉल d। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, राइट, तभी ये कोलिजन पॉसिबल होंगे। Therefore, the number of collisions of the reference particle in time delta t will be equal to number of molecules in the given volume. भाई इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में बाकी सारे लोग स्टैटिक हैं, सब रुके हुए हैं, खाली ये एक मॉलिक्यूल चल रहा है। तो ये मॉलिक्यूल इस एंड से जब इस एंड पे आएगा, तो सबसे टकराते हुए आएगा, सबसे इंटरेक्ट करते हुए आएगा। तो ये कितनी बार कोलाइड करेगा, ये उतनी बार ही कोलाइड करेगा जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? लेट अस से ऊपर ये देखो, ये मॉलिक्यूल तो काम का है नहीं, मतलब ये उसी मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा जिसका कम से कम सेंटर इस लाइन के अंदर हो, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो यहाँ मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, यहाँ मान लो 10 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, मान लो 50 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं जो ऐसे हैं, नीचे भी 50 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं जो d/2 अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर d/2 वाले 50, नीचे d/2 वाले 50। तो जब ये मॉलिक्यूल बीच से जाएगा,
है ना। जब ये मॉलिक्यूल बीच से जाएगा तो ऊपर वालों से भी टकराते हुए जाएगा, सबको छू के जाएगा, नीचे वालों से भी सबको छू के जाएगा। तो ऊपर 50 है, नीचे 50, तो कितने हो गए 100। अगर यही 1000 होंगे आसपास तो हो गए 1000 हर जगह पर, ठीक है। तो उतनी बार हम उनको ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं इस वॉल्यूम के अंदर, ओके, यूनिट वॉल्यूम में नहीं, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, हमारा नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द रेफरेंस पार्टिकल इन टाइम टी, जब तक वो यहां से यहां नहीं पहुंचा, इतने टाइम में कितनी बार कोलिजन हो सकता है, तो उतनी बार ही कोलिजन होगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू n pi d square multiply by average velocity into delta t, okay, this is equal to that number of molecules, ठीक है। ये होगा number of collisions in time delta t। तो in 1 second मतलब number of collisions per unit time, जिसको हमने क्या बोला था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर ये टर्म मैंने बताया था तुम लोगों को, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बच्चों होती है z, तो वो कितनी हो जाएगी, सिंपल है सर। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें पर यूनिट टाइम की, तो ये जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं टाइम डेल्टा टी में, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम के साथ। तो यहां पर देखो n पाई डी स्क्वायर वी एवरेज डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया वो आया n पाई डी स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। इसमें ये जो n है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है n बाई वी पाई डी स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों फॉर्मूले एवरेज कोलिजन फ्रीक्वेंसी के हमें याद रखने पड़ेंगे, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे और अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे हो गए कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर हमें मिल गई, तो मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि बताओ टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू कोलाइड वंस और द टाइम टेकन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक सक्सेसफुल कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगा या एक कोलिजन होने के लिए कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे कोलाइड हुआ, उसके बाद यहां से यहां तक गया, अब इसके बीच में कितना टाइम लगा, है ना। तो बोलोगे सर ये तो टाइम पीरियड हो गया, ऑफ कोर्स, है ना। जैसे वेव्स का कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड टाइम टेकन फॉर वन वेव टू बी फॉर्म फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, राइट। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट हो गया। और टाइम पीरियड बच्चों क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन z हो जाएगा इस केस में। तो देयरफॉर टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स विल बी 1 बाय z, ओके, 1 बाय z। एवरेज टाइम ना वही आ जाएगा, अभी उसी के ऊपर आ रहे हैं हम। एवरेज टाइम कुछ हमने पढ़ा था, एवरेज टाइम ऑफ ट्रैवल को क्या बोलते हैं, टाउ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज टाइम ऑफ ट्रैवल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज टाउ, एवरेज टाइम ऑफ ट्रैवल गिवन एज टाउ। दिस इज 1 बाय z, मतलब 1 अपॉन n पाई d स्क्वायर इनटू एवरेज वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हमें मिल गया टाउ का फॉर्मूला, है ना। ये एवरेज टाइम ऑफ ट्रैवल है बच्चों, एवरेज टाइम ऑफ ट्रैवल मिल गया। अब क्या था, टाइम ऑफ ट्रैवल मिल गया, वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी से चल रहा है VAB से, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये डिस्टेंस कितना होगा। भाई मुझे पता लग गया कि इससे और इसके बीच में एवरेज टाइम कितना है, 1 अपॉन n पाई d स्क्वायर V एवरेज, ठीक है। अब मैं तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो वेलोसिटी अगर मुझे पता है, टाइम अगर मुझे पता है, तो डिस्टेंस तो फाइंड कर लूंगा। तो यही तो मीन फ्री पाथ हो गया। तो यहां से हमें मिल गया देयरफॉर द मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाउ एंड दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स V एवरेज अपॉन n पाई d स्क्वायर V एवरेज। V एवरेज से V एवरेज यहां पे कट कर लो, हो गया 1 अपॉन n पाई d स्क्वायर, 1 अपॉन n पाई d स्क्वायर। और n का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल n का वैल्यू है n बाई v। तो फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिला, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 upon pi d square n by v. Now this was only when the assumptions was there that all other molecules are at rest. If other molecules are not at rest, if other molecules are not assumed to be at rest, then students मैक्सवेल ने बोला कि वहां पर एक 1/√2 का फैक्टर आ जाएगा
तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी, और यही फॉर्मूला जो है वो हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। बट एंट्रेंस में स्टूडेंट्स की कंडीशन ध्यान रखना, अगर वहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है दैट अज्यूम ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, तो तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर कंडीशन नहीं दी हुई है तो फिर स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और भी इसको कुछ फॉर्म्स में हम देख लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करते हैं मीन फ्री पाथ को लेकर। आई होप दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये हमारा फॉर्मूला जो है हमारे बुक के पेज नंबर 57 पर सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, इट कैन बी शोन दैट, बट ये वर्किंग नहीं दी हुई है, तुम लोग के लिए है ये वर्किंग, ठीक है, देखने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। अब इसके और भी कुछ रूप होते हैं वो देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी को हम लिख सकते हैं और दो तरीके से, एक RT/√2 पाई डी स्क्वायर पी, यहाँ पे ये प्रेशर इंटू एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर आ गया, और ये हो गया KBT/√2 पाई डी स्क्वायर पी। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। देखो यहाँ पर हमने किया क्या, यहां से यहां आना तो इजी था, यहां से यहां आना तो बहुत इजी है ना, क्योंकि देखो R क्या होता है स्टूडेंट्स, R होता है Na टाइम्स KB। आर यू गेटिंग इट? तो इस R को हम 2 मिनट लिए अगर Na टाइम्स KB मान लेंगे तो Na और Na कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर KBT/√2 पाई डी स्क्वायर पी। तो यहां से यहां आना तो इजी है, ओके। बट सर यहां से यहां कैसे आ गए, तो उसके लिए समझो ये जो N/V है, ये जो N/V है उसको देखो हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं। N/V का मतलब क्या हुआ, देखो N/V नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो देयरफॉर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पर हमने वो रखा अपॉन वॉल्यूम, और साथ में आइडियल गैस इक्वेशन से क्या हमें पता लगता है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। That means therefore V is equal to nRT/P। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू रखी, जब ये दोनों वैल्यूज को रखा तो ये n से ये n कैंसिल हो गया, आर यू गेटिंग इट, और ये P चला गया ऊपर PNA/RT, राइट। अब जब ये हमने यहाँ पर रखा N/V की जगह, है ना, N/V की जगह क्या रखा बच्चों हमने, PNA/RT, तो PNA/RT रखा तो RT चला गया ऊपर, PNA ऐसे ही रहेगा, तो वहां से हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। तो डिपेंड करता है बच्चों की डेटा क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी, उससे हमको मिला RT/√2 पाई डी स्क्वायर पी इंटू NA, उससे हमको मिला KBT/√2 पाई डी स्क्वायर पी। ये P यहाँ पर है प्रेशर, है ना। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये सब तभी वैलिड है जब सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में है। अगर कंडीशन दी हुई है कि ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, तो ये √2 हट जाएगा, ये √2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत मैंने डेरिवेशन वगैरह करा दिया, वैसे तो बहुत सारी चीजें फिजिक्स ही नहीं खत्म होगी, 2 साल खत्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? अब एक छोटी सी चीज हमने और पढ़ी है, विस्कोसिटी हमने पढ़ी हुई है ना, विस्कोसिटी हमने पढ़ी हुई है। तो विस्कोसिटी और मीन फ्री पाथ का एक रिलेशन होता है, मैं दे रहा हूं एज इट इज, बस लर्न कर लो, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा अभी उसका मैं, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे दे दी है, अब हर चीज का डेरिवेशन लेके बैठेंगे तो हम कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई। अगर आ गया तो उसको यूज कर लेना है। सो म्यू अपॉन, यहाँ पर देखो क्या है, लैम्डा मीन फ्री पाथ है, म्यू या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी सिंबल होता है, ठीक है ना, वो क्या है यहाँ पे विस्कोसिटी है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है एब्सोल्यूट स्केल का, और M क्या है, मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अलग अलग बुक में ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं मेरे बुक में ऐसे मैंने लिखा है कि भाई प्रेशर को कैपिटल P देना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अपॉन कैपिटल P लिखेंगे, रूट ऑफ पाई टाइम्स कैपिटल K लिखूंगा KBT को, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 2m0 भी लिखा जाता है, क्योंकि m0 भी मॉलिक्यूलर वेट हम अपने बुक्स में लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है, तो ये वाला भी एक फॉर्मूला हम मीन फ्री पाथ का एज इट इज याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ हमने आज डिटेल में स्टडी किया। आई होप तुम लोगों को सारे बेसिक एजम्पशन समझ में आए, डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल समझ में आई, और तुम लोग को मीन फ्री पाथ भी समझ में आया। अगर आया तो इस वीडियो को
लाइक करो, शेयर नहीं किया है तो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे फिजिक्स को लेकर। बहुत जल्दी मैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिवीजन कोर्सेज भी लेके आऊंगा, बोर्ड, नीट और जेई रिस्पेक्टिवली। सबके लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे। कितना ज्यादा या कितना कम करते हैं वो अभी समय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये पक्का है कि कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, स्टे कनेक्टेड टू मी, माय डिटेल्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन, कनेक्ट विद मी, कमेंट ऑन द वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट फॉर यू ऑल. I, Aman Bhatia, signing off. I will see you all soon in another video. Till then, take care, keep studying. Bye bye.